Hello girls, you are welcome to our civics class. Children, let's see the few points of the previous session. As the lesson speaks means the heading is Rise of Popular Movements. So you have already read about two movements. The first was the Chipko movement. Do you remember? Who played an important role in the Chipko movement? The villagers and the male and female both. That is the very important thing, that both male and female played an important role to save the environment. And the second you heard about Bharatiya Kisan Union, in which you heard that how the farmers who were well off, they also agitated against the government with different demands. So as we are reading about the movements which were against the government, means the people had few demands. So let's start our today's session. Session number 5, in the same context, we are going to start a new movement, anti-AREC movement. Children, you have already read about the movements. बच्चों, आपने पीछे कई आंदोलनों के बारे में सुना होगा और इस चैप्टर में आपने चिपको मूवमेंट और भारतीय किसान यूनियन के बारे में सुना, जहां लोगों ने, जनता ने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनकी अपनी मांगें थी जिसके पूर्ति के लिए वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आज का भी सेशन है ताड़ी विरोधी आंदोलन। It's very clear that in this the women must have played the important role. ये स्पष्ट है कि यह आंदोलन जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था, इसमें महिलाओं की विशेष भूमिका रही होगी। It's very true, children. So children, as Bharatiya Kisan Union was mobilizing the farmers of the north. So another movement which had taken shape in the southern state of Andhra Pradesh, जिस समय भारतीय किसान यूनियन उत्तरी भारत में अपने चरम सीमा पर था, लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, उसी समय दक्षिणी राज्य में के आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन अर्थात महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन आरंभ कर दिया गया। As children, you know that use of liquor has caused the families and the children, even they have faced the challenges. So the ladies and the children were the sufferers. So it's very clear that they only protested against such evil which was prevailing in the society. Children, during 1970s to 1980s in Haryana, Tamil Nadu, Hyderabad, Andhra Pradesh, Maharashtra, all these states, they witnessed many movements against alcoholism. But the most successful movement against alcoholism, it had taken place in late 1980s and in early 1990s in Andhra Pradesh, when women, they demanded a ban on the sale of alcohol in their neighborhood. जैसे कि आपने सुना 1970 के 1980 के दशक के समय कई राज्यों में मदिरा सेवन के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए, ताड़ी के सेवन के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए, क्योंकि उससे परिवार की परिस्थितियां प्रभावित होती थी। तो इन्हीं आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में 1980 से अर्ली 1990 में आंध्र प्रदेश में महिलाओं के द्वारा डिमांड रखा गया कि ताड़ी की बिक्री पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है। सो विद दिस वी स्टार्ट पॉइंट 7A, ऑरिजिन। आखिर इस आंदोलन का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आप सुनेंगे। चिल्ड्रन, अ विलेज इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश where women were enrolled in adult literacy drive on a large scale in 1990s। कहा जाता है कि नेल्लोर ज़िले जो आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर ज़िला आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? अर्ली 1990s में। उस समय महिलाओं ने
इस कार्यक्रम में जो भी उनकी शिकायतें थीं उस पर वे चर्चा करती थीं, जिसमें उनकी मुख्य शिकायत ताड़ी के सेवन से पड़ने वाले कुप्रभाव जो उनके परिवार में पड़ रहा था उसका चर्चा हो रही थी. So we'll see that what were the complaints which they had discussed about. The first was that the increased of consumption of local alcohol by men had adverse effect on their families. अर्थात उनके परिवार में पुरुषों के द्वारा जो ताड़ी का सेवन हो रहा था, जो उनके लिए एक व्यस्त बन गया था, एक विलासिता का साधन बन गया था, वो एक्सेस था और उससे परिवार की दशा प्रभावित हो रही थी. चाहे वो परिवार की दशा, आप सामाजिक दशा से बात कर लीजिए या आप आर्थिक दशा, दोनों ही दशाएं प्रभावित हो रही थी. द नेक्स्ट इज दैट एल्कोहलिज्म कॉज डोमेस्टिक वायलेंस. अब कहा जाता है कि ये ताड़ी के सेवन से जिसका विरोध महिलाएं कर रही थी, इससे महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा अत्याचार हो रहे थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था. देन कॉज ऑफ अनएंडिंग पॉवर्टी ऑफ अ फैमिली बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ एल्कोहल. ताड़ी के सेवन से, मदिरा के सेवन से जो इतना अधिक इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे परिवार कभी न ख़त्म होने वाली गरीबी का सामना कर रहा था, क्योंकि जो भी धन उन्हें मिलता था, जो भी रोज़ी रोटी वे कमाते थे, उसके लिए उनकी प्राथमिकता क्या थी कि उससे पहले वे अपने इस विलासी साधन को शांत करेंगे. उन्हें उनके परिवार की कोई भी चिंता नहीं रहती थी. परिवार पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ रहा था. आप कह सकती हैं कहीं ना कहीं बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे. इवन चिल्ड्रेन, इट इफेक्टेड द मेंस हेल्थ विच रिजल्टेड इन लेजीनेस. कहा जाता है कि केवल परिवार या बच्चे या स्त्री या केवल बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे थे. इस ताड़ी के अति सेवन से पुरुषों के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ा. वे आलसी हो गए, वे काम करना नहीं चाह रहे थे, उनमें शक्ति नहीं रह जाती थी इतनी कि वे सवेरे उठकर काम पर समय से जाएं और दिन भर काम करें. एज यू नो, देयर इज़ अ कोट, पॉवर्टी इज़ द पनिशमेंट फॉर आइडलनेस. इट्स वेरी क्लियर दैट if we are idle, we cannot do anything. Children, if you are also idle, you cannot study. So we have to be active. All right, and that all depends on our daily habits. The next is, children, that the Muslim women, they also face the dissolution of their marriage. कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने अपने विवाह के बंधन को, वैवाहिक बंधन को टूटते हुए देखा. अर्थात उन्हें समाज में इस परेशानी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अपने अधिकार की मांग कर रही थी कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके. इसके बारे में आप भी अवगत हैं. लेकिन हमारी सरकार ने समाज में फैली इस कुप्रथा पर अब रोक लगा दिया. इसके बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम विवाह जो पहले कुछ ही क्षण में टूट जाते थे, उस पर सरकार ने किस प्रकार प्रतिबंध लगाया, अर्थात उसके लिए कैसे नियम पारित कर दिए. So it's good. We are very thankful to the government for this. The next is, children, that the ladies were not safe in the society because even the youth was affected by the use of liquor. स्त्रियां समाज में सुरक्षित नहीं थी क्योंकि जो युवा वर्ग था वह भी इस मदिरा व्यसन का आदी हो गया था. तो आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार की कुप्रथा, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना उस समय की युवतियों को देखना पड़ा होगा. The next is that indebtedness grew with increasing scale of consumption of alcohol. कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पुरुष क्या करते थे, जो भी वो कमाते थे वो अपने गंदी आदत में व्यय कर देते थे. अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इसके लिए कर्ज लेकर ही महिलाएं अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करती थी, जो कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था. और उसका समाधान करने के लिए उन स्त्रियों को उस समय उनके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे. बिकॉज यू नो, अर्लियर both husband and wife, they were not the earning members. So it was a very tough time. It was a challenge for the ladies facing such evil which was prevailing in the society.
So children, thus the women of Nellore, they came together and protested against EREC and they forced closure of wine shops. अर्थात इन चुनौतियों का सामना करने वाली महिलाओं ने सरकार से क्या अनुनय विनय किया कि उन दुकानों को, शराब के ठेकों को बंद कर दिया जाए, शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए. So this news spread around 5,000 villages where the women, they had taken part in the agitation. They also had taken part to protest against the government. महिलाओं के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया तो आसपास रहने वाले करीब 5,000 गाँवों से महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. So what did they do? Not only they protested, they passed the resolution for imposing prohibition and sent it to the district collector. And it was effected and it was also spread all over the streets nearby. अब इन महिलाओं ने क्या किया, एक प्रस्ताव पास कर जिला कलेक्टर को सौंप दिया, ज्ञापन अपना सौंपा. बिल्कुल इसका प्रभाव हुआ. प्रभाव क्या हुआ बच्चों? 17 बार ताड़ी की नीलामी रद्द कर दी गई. द ऑक्शन ऑफ एरेक वॉज पोस्टपोन्ड फॉर 17 टाइम्स. स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम महिलाएं भी आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे अधिकार मिलते हैं. सो वी लेडीज़, वी शुड नेवर सिट असाइड, वी शुड मूव फॉरवर्ड फॉर आवर राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. Now children, with this we see to the next point, linkages. जैसे कि आपने सुना आंदोलन हुए, तो इन आंदोलन की कड़ियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आंदोलन हुआ और वह समाप्त हो गया, नहीं, उसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं से जुड़ी होती थी और उसका क्या परिणाम हुआ इसके बारे में अब आप इस पॉइंट में सुनेंगे. Children, the ladies, they had just a simple slogan, prohibition on the sale of EREC. महिलाओं ने एक सिंपल सा स्लोगन रखा, क्या था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो. बट दिस डिमांड वॉज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज विच इफेक्टेड द लाइफ ऑफ द वुमेन. लेकिन ये एक साधारण से स्लोगन ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया. क्यों, इसके बारे में अब आप आगे सुनेंगे. Children, you know that the government used to get huge revenue. So what happened? How was it is that the government agreed at once or why not? क्या ये सही था कि गवर्नमेंट ने तुरंत इस पर अपना अग्रीमेंट दे दिया? नहीं, तो ये कहीं ना कहीं से अल्कोहल की बिक्री से सरकार को पर्याप्त कर प्राप्त होता है. So what happened? We'll see now that how it affected the linkages by vendors and the state officers. इन आंदोलन की कड़ियों ने किस प्रकार से मदिरा बेचने वाले और सरकार को किस प्रकार से प्रभावित किया, अब आप कुछ पॉइंट्स में सुनेंगे. Children, it said that the adverse effect was seen on the vendors as EREC auction was postponed for 17 times. जो ताड़ी की बिक्री करते थे उन पर भी इस ताड़ी की बिक्री के 17 बार रद्द होने का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह इनका व्यवसाय कुछ समय तक के लिए ठप हो गया. Then the next is that the goons were hired by vendors to attack the women agitators. कहा जाता है कि अब इस आंदोलन में चूँकि महिलाएं भाग ले रही थी, इसलिए कुछ ऐसे लोगों को हायर किया गया जो महिलाओं को आंदोलन करने से रोक सकें. स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के आंदोलन का प्रभाव समाज पर आर्थिक रूप में देखा गया. The next is movement had adversely affected the economy of the state as the excise duty on this product was stopped for some time. क्योंकि सरकार को बिक्री कर मिलता था, अर्थात एक्साइज ड्यूटी के ज़रिए सरकार को रेवेन्यू मिलता था. क्योंकि ताड़ी की बिक्री या ताड़ी का जो ठेका था उसे 17 बार के लिए स्थगित कर दिया गया. इसका प्रभाव भी किस पर पड़ा? देश की अर्थव्यवस्था पर, उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा. नाउ द नेक्स्ट इज दैट
after some times, means the people, they did not keep quiet. What did they do? They the officers requested the state government to lift the ban on the arak. अर्थात अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने जो ताड़ी की बिक्री पर जो रोक लगा दिया गया था उसको उन्होंने क्या किया, फिर से समाप्त करने का रिक्वेस्ट किया. बट इट इज़ सेड दैट नो सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज देयर. क्योंकि जो भी ये आंदोलन हो रहा था उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था, आर्थिक व्यवस्था पर. इसलिए भी अधिकारियों ने सरकार से अर्ज किया कि जो भी बैन लगाया गया है ताड़ी की बिक्री पर उसे समाप्त कर दिया जाए. So children, it's true that Chipko movement and anti-Arak movements could not improve women's social and economic condition, but it awakened the public to know the problems of the women because they had issues, other issues also. ये सही है कि आंदोलन से पूर्ण रूप से सफलता महिलाओं को नहीं मिली, लेकिन महिलाओं ने कम से कम साधारण जनता को इस बात की जानकारी देने में सफलता प्राप्त की कि इस मदिरा के सेवन से परिवार किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं. उनके आंदोलन से सरकार को भी नुकसान हो रहा है. कौन सा नुकसान? आर्थिक नुकसान, क्योंकि उनके जो कर की अदायगी है वह कुछ समय के लिए कम हो गई थी क्योंकि ताड़ी की बिक्री पर रोक लग गई थी. बट इट इज़ सेड दैट दे हैड अदर इशूज़ ऑल्सो. कुछ और भी समस्याएं थी उन महिलाओं की. द वुमेन हु वर्कड इन विलेजेस सच एज फेचिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, कलेक्टिंग ऑफ वुड, means they used to do this work for the whole day, but still they were unemployed. They did not have any job security. They were not enrolled. कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में स्त्रियां दिन भर लकड़ी इकट्ठा करती थी, कुएं से पानी निकालती थी और पूरे दिन वे काम करती थी, लेकिन वो इनका एक जॉब नहीं था. बड़े बड़े घरानों में भी अगर जाकर ये ऐसा काम करती थी तो उनके उस जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी जिसकी वे आस रखती थी कि उन्हें भी इस काम के बदले ऐसा कोई सिक्योरिटी मिले जिससे समय पड़ने पर उन्हें कोई सहारा मिल सके. So children, as they were active, means the women, they were active. So according to 73rd and 74th amendment, at least 1/3 seats were provided to local bodies, means in the Panchayati Raj system, it was reserved for the women. तो इन्हीं के बढ़ते हुए आंदोलन से क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, 73 और 74वें संशोधन से 1/3 सीट महिलाओं के लिए पंचायती राज में सुरक्षित कर दिया गया. आज भी आप देखती हैं ये व्यवस्था है. Women were not satisfied as they were having poor representation in parliament and state legislatures. कहा जाता है कि स्त्रियों को लोकसभा और विधानसभा में इस प्रकार से प्रतिनिधित्व का कोई भी उनको आरक्षण नहीं दिया गया या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया जहां वे अपने डिमांड को रेज कर सकें. So what had happened? A demand was raised by a certain party leader. What did he want? He wanted to grant quota for the OBC and Dalit women. वो क्या करते थे, वो पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाओं के लिए भी वह इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने मांग रखी. So regarding this matter, amendment of bill was proposed and it was passed by Rajya Sabha, but due to some reasons it couldn't pass from Lok Sabha. कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की जहाँ चर्चा की जाए वहाँ महिलाओं के प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा में यह बिल पास हो गया कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए एक सांसद के रूप में, लेकिन लोकसभा में किन्हीं कारणवश पूर्व में यह बिल पास नहीं हो पाया था. But children, we know that in 21st century, India deserves to treat women with dignity where equal opportunity for men and are given to each one of us in every field. कहा जाता है कि 21वीं सदी की महिलाओं के साथ ऐसा कोई असमान व्यवहार नहीं है. सभी को एक समान व्यवहार मिलता है, सभी को एक समान अधिकार मिलते हैं. So it's something to feel proud that we ladies are on the same platform. Now your task is you will just check and write that how many member of parliament as women are there at present.
आपका ये काम है कि अब आप एक लिस्ट बनाएंगी जिसमें आप लिखेंगी कि राज्यसभा और लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद हैं. This is the task for you for today's session. So this you will be writing in your daily notes copy. Am I clear? राज्यसभा और लोकसभा में at present कितनी महिलाएं सांसद हैं. With this, I request you all to children just go through the lectures, read the lesson. Okay? Thank you, my children. God bless you.